future for their village and the country. Thank you. Now let us start our main occasion. Firstly, I request all the participants to give their introduction of their role truly and continue the Sabha. As the elected leader of the Gram Panchayat, I hear the voice of people and bring the pledge towards success. My role is to listen with care, bring everyone together, and make sure decisions that reflect the needs of including women, children, elderly, marginalized, and with special needs. Thank you. For rules, records, and procedure, so that the Gram Sabha decisions are lawful, open to all, and reach every household. Thank you. As this the highest achieved, I support the Panchayat Secretary in smooth functioning. My role is to help with records, data, and coordination so that the work of Panchayat is efficient and open for all. As the data entry operator, I make sure that the Panchayat work is recorded digitally, and my role is to assign accuracy and the timely entry of the data so people they get the benefit without delay. Thank you. As sports and cultural head, we promote fitness, creativity, and cultural pride for all the villagers. Margin for children's learning and ensure no child is left behind and every child works with hand in hand for the brighter of future tomorrow. As a parent in the school management committee, we bring the voices of families to ensure children learn in the safe and supported schools. As a Rojgar Sayak, I ensure villagers get rightful work and wages under Manrega. My role is to connect families to jobs and keep records open and fair. As a Krishi Sayak, I bring knowledge of farming, seeds, soil and schemes. My role is to guide farmers towards better harvest, eco-friendly practices and support from government schemes. As a youth, we bring energy and ideas. Our role in Gram Sabha is to make sure youth voices are heard and to build a better future together. Thank you. As the ASHA worker, I'm the bridge between the community and health services. My role is to guide families towards safe deliveries, healthy habits and timely treatment. By caring for every home, I help my village stay healthy and strong. We are the SSG members. I make sure children get healthy, timely, and clear marks that supported their learning and future. I turn skills into livelihood. By making products, we support my family and village economy. We feed families and support livelihoods. Our voice in Gram Sabha is to ensure agriculture with strong and fair. Thank you. As an elder woman, I bring wisdom and guide the younger generation with care. In Gram Sabha, my voice ensures women, families, and vulnerable groups are heard. As an NGO worker, I stand beside the community to strengthen their voices, bring new skills, knowledge, and partnership. As the Anganwadi worker, I am the first friend of
children and mothers. My role is to support early learning, good nutrition and health, aiding children grow strong and ready for school. As an environment head, we protect land, water and air for today and future generations. As health and sanitation head, we ensure every family has clean surrounding and access to good health practices. Thank you. As the headmaster and teachers, we guide children's education and build trust between school, peoples, and community. Our role is to lead learning and ensure every child feels safe and included. Thank you. सभी को गांव के सरपंच होने के नाते मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की ये सभा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम यहाँ हमारे युवाओं, गांव और नारी शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं वार्ड मेंबर्स को मौका देना चाहूंगी। नमस्कार आप सभी को, सभा में जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उन्हें मेरा नमस्कार और सभी गांव वाले को। मैं अब सभा के सामने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है कि हम कैसे बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को सुधार सकते हैं और उनके लिए क्या कदम ले सकते हैं, और बालिकाएं शिक्षा के लिए हम क्या कदम ले सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में दाखिला ले पाए, पढ़ पाए और अपने लिए कुछ कर पाए। यही नहीं, जब हम एक ही रिदम से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारे लगाते हैं, उसी एकता के साथ हमें हर वो बच्ची को स्कूल भेजना चाहिए जो पढ़ना चाहती है। मुझे दुख तो उन बेटियों के लिए होता है जो शादी के मंडप में नहीं, स्कूलों के बेंच पर बैठना चाहती हैं और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप को देखना चाहती हैं। तो मैं आप सभी से, सभा के मेंबर्स और हमारे सरपंच जी से ये अनुरोध करता हूँ कि उनके लिए कुछ हमें करना चाहिए ताकि हमारे एजुकेशन में कुछ बदलाव हो और हमारी शिक्षा बहुत ऊपर तक पहुँच पाए, ताकि सब जितने भी हमारे गाँव वासी सब पढ़ लिख कर कुछ बन सके। धन्यवाद। पहले कहा है, क्या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिपेयरिंग आपने किया है? मुझे तो कुछ नहीं दिखता। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कह देते हैं, मैंने ये किया है वो किया है, पर मुझे तो नहीं लगता आपने क्या किया है। प्लीज मुझे दिखाइए आपने क्या किया है। अब कुछ कहने से पहले स्कूल में जाकर देख लीजिए। हेडमास्टर जी, आप इन्हें बताएं कि जो कंस्ट्रक्शंस और नई किताबें बच्चों के लिए आए हैं। जैसे हमारे सरपंच जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लासरूम रिपेयरिंग में पैसा दिया है और मिड डे मील के लिए भी। मेरा एब्सेंस पे स्कूल में टेबल किताब भी आया है। मैं सभा के बाद सभी यहाँ उपस्थित सदस्यों को विद्यालय पर आकर सबको देखना चाहिए। ये तो सच कहा कि किताबों और बेंचेस पे खर्चा हुआ है, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा हुआ है। ऊपर से बस सीमेंट की लेयर लगा देने से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात नहीं होती। वही सीमेंट एक बच्ची के सर पे गिरा और वो आज अस्पताल में भर्ती है। वैसे भी हमारे विद्यालय में लड़कियों का दाखिला काफ़ी कम होता है। ये हादसे के बाद काफ़ी लड़कियाँ स्कूल छोड़ चुकी है। इतना ही नहीं, काफ़ी लड़के भी स्कूल छोड़ चुके हैं। अगर यही हमारा गाँव का हालत रहेगा तो विकास कैसे होगा हमारे गाँव का। तो मैं अनुरोध करता हूँ सबसे, अगर पैसे नहीं है बनाने के लिए तो हम थोड़ा रुक सकते हैं, लेकिन अगर हम कम पैसों से बिना अच्छे वाले सीमेंट और धातुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे जाके हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो अगर पैसे नहीं है तो हम थोड़ा रुक के लेकिन पैसे जमा करके अच्छे सीमेंट धातुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो बिल्डिंग आज जैसी है वो 10 साल बाद भी वैसे ही दिखे। धन्यवाद। जी, आपने तो ये बात सही कही है कि
पदार्थ जो अच्छे हैं उन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पतली सीमेंटिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जैसे इसने हादसा बताया उसके जैसा हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप रुक कर वो चीज़ को कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि अभी फंड नहीं आया ये चीज़ के लिए और उसको बाद में कर सकते हैं। पतली सीमेंटिंग के लेयर लगाने से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो जाता सरपंच जी। और मैं सभी सरपंच जी से अनुरोध करता हूँ कि अब जो होने वाला अभी जो फंड का पैसा आएगा उसे हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। धन्यवाद। तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ये सब की बात कर ही रहे हैं तो मैं भी अपने विभाग हेल्थ एंड सैनिटेशन की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे गांव के रास्तों में पानी भर गया है। इसकी जब जानकारी की गई तो पता चला ड्रेनेज में प्लास्टिक फंस गया है। तो इसके कारण सड़कों पे अधिकतर पानी भरने के कारण डेंगू और मलेरिया का खतरा हो रहा है। सब आज भी हमारे अस्पताल में 5 लोग संक्रमित होकर आए हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि सरपंच जी इस पर कुछ करे, वो ड्रेनेज को जल्दी से जल्दी खुलवाए ताकि पानी ना भरे। और इसके ऊपर मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ कि ड्रेनेज में प्लास्टिक कैसे फंसा, यह हमारी गलतियों की वजह से फंसा है। हम गाँव वाले अपने कचरा कहीं पर भी फेंक के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। हम अपना कचरा एक ऐसी जगह पे फेंक सकते हैं जहाँ पे गांव से थोड़ा दूर हो और अच्छा जगह हो जाके हमारे गांव में ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो इसमें मेरा एक सुझाव है कि गांव के सामने वाला जो जंगल है उसके सामने एक कुआं है, वो काफ़ी सालों से वीरान पड़ा हुआ है। तो हम उसमें कचरा फेंक सकते हैं। वो कुआं इतना गहरा है कि हम उसमें लगभग 10 साल या 20 साल तक कचरा फेंक सकेंगे। और वो गाँव से काफ़ी दूर है तो बदबू जैसी, मच्छर, ये सब की परेशानियाँ भी हमें नहीं होगी और गाँव साफ रहेगा। धन्यवाद। ये विचार तो काफ़ी अच्छा है। क्या नागरिक गांव के नागरिक होने के बावजूद आपका कर्तव्य नहीं बनता गांव में कचरा फैलाने का और कचरा को ये कचरे पेटी पर ढाल के आना का, है कि नहीं? ये आपका ही तो कर्तव्य है। मैं सभी सभा के मेंबर से पूछता हूँ तो जो अपने फैलाए हुए कचरे को उसे तो हमें कचरे पेटी पर फेंक के आना चाहिए ताकि हमारे गांव साफ साफ हो। और मैं सरपंच जी से अनुरोध करता हूं कि जो प्लास्टिक और ड्रेनेज का जो भी अभी मामला चल रहा है उसके लिए आप कर्मचारियों को रखें ताकि वो प्लास्टिक क्लीन कर सके जल्द से जल्द और गांव को डेंगू और मलेरिया से साफ कर सके। और मैं हेल्थ और सैनिटेशन टीम को ये बोलना चाहूँगा कि आप जाकर हफ्ते में उन्हें देख ले कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं, कर्मचारियों को, और गांव का विकास हो। धन्यवाद। विद्यालय की तरफ से एजुकेशन इंचार्ज, वार्ड मेंबर और सभी ग्राम सभा को इनका जवाब देना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों का लर्निंग आउटकम्स को कैसे सुधर सकता है। बच्चों का लर्निंग आउटकम को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले उनके अटेंडेंस पर ध्यान देना जरूरी है। उनका अटेंडेंस को सुधार आने के लिए हम विद्यालय की तरफ से ये शुरू करेंगे कि जो बच्चे अनुपस्थित थे उनका घर जाकर पूछताछ करेंगे और हर महीना स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ अटेंडेंस रिव्यू करेंगे। इससे जरूर बच्चों का लर्निंग आउटकम्स में बदल आ सकता है। और जैसे हमारे एजुकेशन इंचार्ज वार्ड मेंबर ने कहा कि हम बालिकाओं का विद्यालय छोड़ना कैसे कम किया जा सकता है। मैं हेडमास्टर होने के नाते मेरा तरफ से ये सुझाव है कि हमें अपना बेटियों बहनों को जल्दी विवाह नहीं करवाना चाहिए और उनके लिए स्कॉलरशिप और बाइसाइकिल उनको देना चाहिए। और मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, RTE यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। इसमें सभी को पढ़ने का अधिकार है। और मेरा दूसरा जानकारी ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बहुत ज़्यादा विद्यालय भी खुली गई है, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसी स्कूलें भी है। ये स्कूलों में बेटियों को अच्छी तरह से सुविधा दी जाती है। इससे हमारा बालिकाओं का विद्यालय छोड़ना कम किया जा सकता है। धन्यवाद। माननीय सरपंच और सभी सभा को मेरा नमस्कार। जैसे इन्होंने कहा कि अटेंडेंस पे ध्यान देंगे और बाइसिकल और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, तो क्या आपको लगता है ये सब प्रोवाइड करने से हमारे लर्निंग आउटकम्स थोड़ा इम्प्रूव हो गए?
मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों की काफ़ी कमी है। अगर विद्यार्थी नहीं रहेंगे तो हम ये सब किसे करेंगे, अटेंडेंस हम किसका लेंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे विद्यालय में दाखिला लें। इतना ही नहीं, उसमें अधिकतर बालिकाएं होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा होता है कि लड़के तो पढ़ सकते हैं लेकिन लड़कियां नहीं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता सोचते हैं कि जल्द से जल्द उनकी शादी करा दी जाए और उन्हें कहीं चूल्हा चौका में फूंक दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। हर एक को पढ़ने का अधिकार है, सब, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या कोई भी हो। इसलिए मैं सबके सामने ये सुझाव रखना चाहता हूँ कि हमें तो सबसे पहले कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि बालिकाओं का एडमिशन हमारे विद्यालय में हो। इतना ही नहीं, हमारे विद्यालय में अधिकतर एडमिशन हो बच्चों का, ताकि हम ये स्कॉलरशिप, अटेंडेंस और ये बाइसाइकिल उन्हें प्रोवाइड कर सकें और अच्छा शहर बना सकें। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे हेल्थ वार्ड मेंबर जी का। आपने तो बड़ी आसानी से ये बात कह दी, पर क्या आप जानते हो, आप भी तो एक नागरिक हैं, आप भी होने वाले पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, किसी के भैया हैं। आपका भी ये कर्तव्य बनता है हर उन माओं को जाकर बताना, सिर्फ माओं को नहीं, पिताजियों को और गांव वालों को बताना कि लड़कियों का स्कूल जाना और पढ़ लिखना कितना अच्छी बात हो, ताकि वो अपने दम पर खड़े होकर कुछ कर सके। ये सिर्फ हमारे ऊपर लागू नहीं होता, सबका। मैं वापस से आपको कहना चाहूँगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, उसके अंतर्गत आप जिस तरह से नारे लगाते हैं उसी तरह से एकता के साथ अपनी बेटियों को स्कूल भी भेजिए। इससे हमारे स्कूल का बहुत विकास होगा और बहुत भलाई होगा। और मुझे तो वादा जो सरपंच जी ने किया था वो भी वादा जैसा नहीं लगता, क्योंकि सरपंच जी ने मुझे 2 साल पहले लाइब्रेरी का वादा किया गया था और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और मिड डे मील जो सरपंच जी ने मुझसे वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ। एसएसजी वर्कर क्या कर रहे हैं हमें तो नहीं पता, हमें कुछ तो आप दिखाइए कि आप क्या कर रहे हैं। मिड डे मील का मतलब हफ्ते में एक दिन खाना आना नहीं होता, पूरे हफ्ते में दिन को खाना आना होता है, ताकि बच्चे भरपेट खाना खा सके और पढ़ाई में अव्वल आ सके और पढ़ लिख कर कुछ बन सके। तो मुझे इसका जवाब एसएसजी और सरपंच जी से चाहिए। हाँ, बस हमें पर इल्जाम मत लगाइए। सब्जी का सप्लाई ब्लॉक से है, इसलिए देर से आती है। हम खाना कैसे बनाएंगे? जो सब्जियां खिचड़ी के लिए आता है उसे तो बाजारों पर बेच दिया जाता है। ये तो गलत है। जो सब्जी बच्चों के लिए आ रहा है उन्हें अगर बेच दिया जाएगा तो हम खाने में क्या डालेंगे? मैं सरपंच का अनुरोध करता हूँ, जो ये सब कर रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शांत हो जाइए, दोनों तरफ की बातें सुन ली गई है। जैसे हमारे एजुकेशन वार्ड मेंबर ने कहा है, मैंने उसे 2 साल पहले जो लाइब्रेरी का वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। अगर हम स्कूल जाकर देखेंगे तो बच्चों को लाइब्रेरी की नहीं बल्कि उन्हें नई किताबें, स्कूल में बेंचेस, क्लासरूम रिप्लेसमेंट की जरूरत है, जिसके लिए फंड दी गई है। लेकिन इस बार जो फंड बजट कमेटी से दी जाएगी उसको लाइब्रेरी के लिए ही दी जाएगा। और पेरेंट्स से शिकायत आ रही है कि जो सब्जियां खिचड़ी के लिए आ रहा है उन्हें बाजार में बेची जा रहा है। जो भी ये कर रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हम किसान ठीक से खेती नहीं कर पा रहे क्योंकि मीटर का दाम पूरा आसमान छू रहा है। इसमें हम क्या करें बताइए ना कोई। हमारे घरों में जो भी खराब हो चुकी सब्जियां बचती है उन्हें हमें किसानों को दे देना चाहिए, अर्थात खाद बनाने के लिए। हाँ, आपने ये तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मेन्योर के लिए तो हमें बहुत पैसा देना पड़ता है। खेती की बात हो ही रही तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आशा की तरफ से कि जो अस्पताल में नया बच्चों के लिए सामान आता है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है
और तो और जो पैसा सरकार नया बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसका भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे छोड़िए, मैं पिछले 6 महीनों से यहाँ काम करते आ रही हूँ पर मेरा तनख्वाह अब तक नहीं आया है। अभी के लिए आप तनख्वाह को छोड़ दीजिए क्योंकि सब सेंटर में मेडिसिन की भी कमी हो गई है। अगर दवाइयाँ ही नहीं रहेंगी तो हम गांव के नागरिकों का इलाज कैसे करेंगे जो संक्रमित होकर अस्पताल में आ रहे हैं? क्या हम उन्हें ऐसे ही मरने दें? नहीं। इसलिए मैं सरपंच जी से अनुरोध करता हूँ कि ये इस पे कुछ जल्द से जल्द करें। धन्यवाद। अरे तनख्वाह को कैसे छोड़े? क्या मुझे अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिलनी चाहिए? मैंने ये तो नहीं कहा कि आपको आपकी मेहनत की कमाई नहीं मिलनी चाहिए। मैंने ये कहा कि सब सेंटर में मेडिसिन की कमी हो गई है और अगर आपको मेहनत की कमाई चाहिए तो वो तो मैं देने वाला हूँ नहीं क्योंकि मैं ये सब का कारोबार करता नहीं हूँ। ये आप सरपंच जी से पूछिए। शायद आपको कुछ और ही सुनाई दे रहा है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई मांगी है, वो भी सरपंच जी से, आपसे नहीं। ड्रेनेज और गार्बेज की वजह से हमारे गांव वासियों को जो भी तकलीफ उठानी पड़ी है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इसे हल करने के लिए मैं जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों को सूचित करूंगी ताकि ये समस्या जल्दी से हल हो सके। और मैं हमारे गांव वासियों को अनुरोध करती हूँ कि वे लोग अपने घरों में जो भी सब्जियां बचती है उसे ना फेंकिए, उसे किसानों को दी जाए ताकि किसान इसका सही इस्तेमाल करे और गांव में और तरक्की करे। और हमारे आशा वर्कर से कंप्लेंट आ रही कि जो दवाइयाँ और रुपयों नए बच्चों के लिए सरकार की तरफ से आ रहा है उसका गलत उपयोग किया जा रहा है। ये जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट की जाएगी और आपको आपकी तनख्वाह हर महीने दी जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा सरपंच जी कि गांव में कैसी कैसी परेशानियां हैं? आप शहरों में जो रहते हो, जितनी तेजी से गिरगिट अपने रंग नहीं बदलते उतनी तेजी से तो आप अपने बंगले बदल लेते हैं। हम तो आपके बंगले गिन गिन के थक चुके हैं। क्या आपको कुछ कहना है इधर? आप बस बंगलों गिनते रह जाए। अगर आप मुझ पर ध्यान ना दे के अपने कामों में ध्यान देते तो गांव में कितनी तरक्की हो जाते। नमस्कार आप सभी को। हम वातावरण विभाग की तरफ से आज ग्राम सभा में अपने कुछ प्रस्ताव रखना चाहेंगे। जैसे पेड़ पौधे को हम मैदान या तो सड़क के किनारे लगवा सकते हैं। इतना ही नहीं, मनरेगा के फंड को हम नाले और तालाब की साफ सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? मनरेगा से मुझे ये याद आया कि लोग कंप्लेन करते हैं लेकिन क्या वो काम की मांग ढंग से करते हैं? और बहुत लोग तो जॉब कार्ड्स के लिए अप्लाई भी नहीं किए हैं। इसके लिए तो आप हमें बिल्कुल मत सुनाइए क्योंकि अगर हम अप्लाई कर भी देते हैं तो तनख्वाह को आने में 3 महीने लग जाते हैं। इन 3 महीनों में हम जैसे गरीब अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? फिर वातावरण वार्ड मेंबर से जो सुझाव आया है वो काफी अच्छे हैं। हमें अपने रास्तों और खेल मैदानों के किनारे पेड़ लगाने चाहिए ताकि जिससे हमारे गांव की हरियाली बरकरार रहे। और हम मनरेगा फंड को भी सही इस्तेमाल करेंगे ताकि गांव में नाले और तालाब का समस्या ना हो। और हम गांव वासियों को अनुरोध करती हूँ कि वे लोग जो भी अभी तक जॉब कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है वे अप्लाई कर दे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर कार्ड मिल जाएगी और उसमें तनख्वाह दी जाएगी। ये वादा तो आपने 2 साल पहले भी किया था पर अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि मैं अपनी वादा निभाऊंगी। नमस्कार आप सभी को। तो स्पोर्ट्स और कल्चरल कमेटी हेड होने के नाते मैं सरपंच जी से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तो हर कोई सिर्फ ड्रेस और वेजेस के बारे में बात करे, लेकिन हमारे गांव के यूथ के लिए स्पोर्ट्स का क्या? उनके पास ना खेल कूद के सामान है और उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास मैदान ही नहीं है। तो क्या ये पंचायत ने कभी नहीं सोचा है कि हमारे गाँव में एक प्रॉपर प्लेग्राउंड या स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाया जाए? सिर्फ ड्रेस और वेजेस पर ध्यान देने की बजाय बच्चों के हेल्थ और फिटनेस पर भी ध्यान देने ज़रूरी है क्योंकि वे लोग ही हमारे आने वाले कल की भविष्य है। खेल हमारे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि वे हमारे शरीर को स्वस्थ और दिमाग को तेज भी रखता है।
तो मैं आखिर में ग्राम पंचायत से ये अनुरोध करता हूँ कि इस पर सीरियस डिस्कशन हो और जल्दी से प्लान बनाया जाए। धन्यवाद। हाँ, आपने तो बात ये सच कहा। हम भी लोगों को खेलने के लिए वस्तु और इंटरनेट की सुविधा चाहिए। आप हमें हमेशा आखिर में मत रखिए। वाह बेटे वाह। और हमारा क्या, पेंशन के इंतजार में हम मर जाएंगे। अब तो बड़े ही कुमारी और बच्चे के बारे में सोच रहे हो, पर मुझ जैसे विधवा औरत के बारे में भी सोचिए। वो अकेली काम करके थक चुकी है। मैं सरपंच जी से ये विनती करती हूँ कि पहले हम लोग के लिए पेंशन लगाइए, उसके बाद बच्चों के लिए इंटरनेट लगाना। अगर अपने जमाने के दिन किसी बच्चों पर ध्यान दिया होता ना, वही बच्चा आगे जाकर आपको ध्यान दे रहा होता। इसलिए हमें पहले बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारे और हमारे गांव के भविष्य है। हे राम, ये बोलने से पहले तुम्हारे मुंह पे कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए? मेरे पति तो जवानी में ही मर गए। और रही बात बच्चों की, मेरे पास तो बच्चे ही नहीं है। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि बच्चे हमारा फ्यूचर है, पर भी बच्चे की तो जिंदगी बच्चे है। पर हमारे क्या, हम तो कब मर जाएंगे ये नहीं पता। और मैं अकेली काम कर करके थक गई हूँ। मेरे शरीर मुझे जवाब देने लग रहे हैं। तो मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे पहले पेंशन दो। पर ही नहीं बल्कि सब पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बजट कमेटी को मौका देना चाहूंगी। नमस्ते आप सभी को। बजट कम्युनिटी का हेड होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को स्कीम के बारे में और सरकारी योजना जो आ रहे हैं उन्हें मैं सब गांव वालों को सूचित करूं। तो इस बार हमारे फंडिंग में कुल मिला के 5 लाख आया है, जो खेल क्षेत्र, हेल्थ कैंप्स और पेंशन कैंप्स के लिए आया है। तो मेरी ये विनती है कि हमारे सचिव जी और सरपंच जी कि ये पैसा को सही मात्रा पे, सही जगह पर आप सही मात्रा पर निवेश करेंगे। अपना तो अपना होता है। अगर आप लोग सही जगह में अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपके परिवार और आपको ही फेस करना पड़ेगा। तो मेरी ये विनती है सबसे कि जितना भी फंडिंग दिया जा रहा है उनका प्रॉपर यूटिलाइज करके हमारे गांव को जितना हो सके उतना डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर आप लोग को फंडिंग दिया जाता है तो आप लोग को रिपोर्ट और आउटकम देना होगा। नहीं तो आउटकम अगर आप नहीं देंगे तो दूसरे साल जो फंडिंग आएगा उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो मैं सभी वार्ड मेंबर्स से पूछना चाहता हूं, अगर मैं फंडिंग आप लोगों को देता हूं तो क्या आप हमें आउटकम देंगे? आपकी ये सहमति मैंने सुनी है। तो अगर आप आउटकम देंगे तो हम भी आपको फंडिंग देंगे। धन्यवाद। आउटकम देने के लिए तो हमें पहले फंडिंग भी तो मिलनी चाहिए। फंडिंग तो हमें मिलती नहीं और ऊपर से आउटकम की बात करते हैं। पहले आप फंडिंग तो इंश्योर कर दीजिए, तब हम आउटपुट देने के लिए आपको राजी हैं। और रही बात ये फंड की, फंड तो हमारे पेट के अंदर तो जाता नहीं, फंड तो आपके उन काले गोदामों में काला धन बनकर जाता है। तो हमें मत सिखाइए कि हमें फ़ंड का कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें तो फ़ंड मिलता ही नहीं है। और रही बात मेरे पुस्तकालय के लिए, मुझे 1.5 लाख चाहिए और ट्यूशन के लिए भी। लोग तो बोलने में तो कुछ भी बोल देंगे कि आपने ये लिया है मेरा, आपने वो लिया है, लेकिन आपके पास सबूत होना पड़ेगा। इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे हमारे वार्ड मेंबर 2 ने कहा कि वो ट्यूशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमने पिछले साल भी ट्यूशन पे पैसे लगा के देख चुके हैं। लोग को जब पैसा मिल जाता है तो वो बच्चों के बारे में नहीं सोचते। अपना पेट भरने के बाद कौन तो दूसरों के बारे में सोचेगा। तो मुझे नहीं लगता इस बार ट्यूशन पे देना चाहिए, क्योंकि ट्यूशन एक ऐसी सुविधा है जिसपे आदमी खुद से पढ़ाता है और खुद से पैसे लेता है विद्यार्थियों लोग से। लेकिन हमने पिछले साल ये सोच के ट्यूशन पढ़ाने के लिए दिया है क्योंकि हमारे गांव के बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन हमने क्या देखा कि गांव के बच्चे तो अधिकतर ट्यूशन जाते नहीं हैं, और ट्यूशन के नाम पे तो वो कहीं खेलने चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। और इसका फायदा उठाते हुए जो उसे ट्यूशन पढ़ा रहा है वो
वो जो पैसा उसे मिल रहा है वो अपनी जेब में रख लेता है, उसे कुछ काम नहीं करना, उसे पैसा आते रहता है, तो हम क्यों उसे पैसा दें? हम ये पैसे को कहीं और लगा के विकास भी तो कर सकते हैं। क्या आपको मेरा सुझाव सही लग रहा है? क्योंकि ट्यूशन तो हमेशा दिखता ही है कि हमारे विद्यार्थी कितने अच्छे से ट्यूशन कर रहे हैं। अगर वो विद्यालय में ठीक से पढ़ ले तो हमें नहीं लगता कि उन्हें ट्यूशन की जरूरत है। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पे अगर ट्यूशन नाम की चीज ही ना हो, अगर विद्यालय में अगर कोई विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लेता है तो, क्योंकि हमारे विद्यालय में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने काफी ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान हमारे विद्यार्थियों को दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ट्यूशन पे हमें इस साल तो पैसा लगाना चाहिए। धन्यवाद। अरे आपने ये बात तो सही कही है, पर आप ये भी जानते हो कि कितने बच्चे उधर हैं जो बहुत पढ़ाई में कमजोर हैं। उन्हें तो पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ विद्यालय में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें एक्स्ट्रा ट्यूशन देना पड़ेगा ताकि वो और तरक्की कर सके और प्रथम आ सके। सब विद्यार्थी आगे बढ़ जाएंगे तो उनका क्या होगा? जो पीछे रह जाएंगे, क्या वो गांव में ही खेती करके बैठेंगे? नहीं, उन्हें भी तो आगे बढ़ना होगा। और जो पढ़ लिख कर बड़े हो रहे हैं वो तो स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं ऐसे टीचर, पर वही टीचर अगर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएंगे तो उन्हें वो बच्चे के बारे में बहुत मालूम होगा, क्योंकि वो विद्यालय में भी वो बच्चे को पढ़ाते हैं। उनके बारे में उसे पता होगा कि ये बच्चा कहाँ और कैसे कमजोर है। तो इसके लिए मुझे लगता है ट्यूशन के लिए तो हमें बजट मिलनी ही चाहिए ताकि हम गांव को तरक्की में और आगे बढ़ सके। धन्यवाद। आपने आसानी से तो कह दिया, जो बच्चा पीछे रह जाता है वो पीछे ही रह जाता है और जो आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्यों होता है? ये ट्यूशन के कारण भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा खेल कूद में ज्यादा मन लगाता है उसे पढ़ने का मन नहीं करता है। जो गीत ये सब कुछ करता है उसे भी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ट्यूशन वही विद्यार्थी जाता है जो स्कूल में अच्छे से पढ़ता है। तो हम अलग से पैसा क्यों दे जब सबको अलग, अगर उसी जगह पे जो पढ़ने वाला विद्यार्थी वो ना आए और उसी जगह पे जो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी आए, तब हम कह सकते कि हाँ हो रहा है कुछ विकास और दोनों बराबरी पे आ रहे हैं। लेकिन क्या अगर वो जो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी ट्यूशन ही ना आए और जो पढ़ने वाला विद्यार्थी वो ट्यूशन आए, तो पढ़ने वाला विद्यार्थी तो और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला तो वो तो पीछे का पीछे ही रह जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता इस बार ट्यूशन पे कोई भी फंड देना चाहिए। हमारे गांव की ओर देखा गया है कि शौचालय न होने के कारण महिलाओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं पंचायत जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो इस समस्या का कुछ हल निकाले और हमारी ओर से हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए भी 2 लाख की मांगे रखती हूँ। वाह 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 वाह, 2 लाख, इतनी बड़ी रकम, वो भी 5 लाख में से? नहीं, सब तो आप ही ले जाओ, हमारे लिए तो कुछ बचाओ ही मत। ये आपकी समस्या आप ही साथ में रखिए। हमारे गांव की ओर देखा जाए तो डेंगू मलेरिया के कारण काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं। उनका इलाज का क्या? इलाज के लिए तो इक्विपमेंट्स भी नहीं बचे। अगर रुपए ही नहीं दोगे तो इलाज कहाँ से होगा? गांव में सच का विकास आगे कैसे बढ़ेगा? सब पैसे की मांग कर रहे हैं तो मैं भी अपनी मांग रखती हूँ। हमें भी 50,000 चाहिए सामान और जमीन खरीदने के लिए। इतना काफी है शुरुआत के लिए। मुझे तो लगता है कि नए इक्विपमेंट्स की तो आप लोगों को जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पिछले साल का ही आप लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया। और रही बात बच्चों के लिए खेलने के लिए जमीन, वो तो सरकारी अधिकारियों ने उन पर क्या करके बैठाया, उस पर सांप की तरह कुंडे मार कर बैठाया है। और साथ ही हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें इन्हें पहले छुड़ानी चाहिए। हाँ, आपने सही कहा कि सरकारों ने जमीनों को हड़प लिया है। इसलिए मैं सरपंच जी से अनुरोध करती हूँ कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए। अगर हर चीज़ों में फंड की मांगे हो तो हमारे वातावरण के लिए क्यों नहीं? अगर हमें 1.5 लाख रुपए मिले तो हम उनका सही उपयोग करेंगे, जैसे तालाब की मरम्मत और गांव की हरियाली बनाए रखने जैसे कदम उठाएंगे। नमस्कार आप सभी को। आज मैं एसएसजी की तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारा क्या होगा, हमें भी तो सपोर्ट चाहिए ट्रेनिंग के लिए ताकि हम सामान बेच पाए। हाँ, एसएसजी और यूथ प्रोग्राम को भी थोड़ा सा बजट मिलना चाहिए। विकास
तालाब नाले ये सब चीज से नहीं होगा, सभी चीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा हमें। अगर तालाब की मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया तो फसल खराब हो जाएगा। मेले और खेल के तो भूल जाओ, सब खाली हो जाएगा। मैं भी यूथ के ओर से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और नई नई चीजें नहीं सीखेंगे तो क्या लगता है, बताइए, हमारे गांव का विकास होगा? आपने तो मेरे मन की बात कह दी। शिक्षा ही आधार है। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो गांव में विकास कौन करेंगे, बताइए कौन करेंगे। और मैं सरपंच जी से ये मांग रखना चाहती हूँ कि गांव पे इंटरनेट लगाया जाए ताकि हमारे बच्चों को और सुविधा मिले और हमारे गांव को लाभ हो। देखते हैं, और मेरा पेंशन को मत भूलना। मरने से पहले इसे कर लो, वरना अगली बार मैं अकेले नहीं पूरे मोर्चे को लेके आऊंगी, फिर देख लेना आप सभी। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? शांत हो जाए सभी। हमने आज आप सभी की बातें सुनी है और हमें आप सभी का समस्याओं का भी ज्ञात हुआ है। गांव में तो काफी समस्या है, लेकिन हमें एक साथ मिलकर इसे हल करना होगा। इसलिए आए हुए रुपयों को उनकी दिक्कतों के हिसाब से दी जाएगी। पुस्तकालय के लिए 1,25,000 रुपये, स्वास्थ्य के लिए 2.5 लाख, वातावरण के लिए 1,25,000 रुपये, खेलकूद के लिए 50,000 रुपये, पेंशन शिविर के लिए 50,000, सभी को उनके मांगे हुए रुपयों के हिसाब से दी गई है। उम्मीद है आप सभी इन रुपयों का सही इस्तेमाल करेंगे। मैं आंगनवाड़ी की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव के बच्चे अंडरवेट हो रहे हैं क्योंकि फूड स्टॉक नहीं आ रहा है टाइम से। घर की खेती आंगनवाड़ी के खाने में योगदान कर सकते हैं और बच्चों को स्वस्थ खाना खिलाने के लिए हमें औरतों को स्कूल के करीब जमीन दे देना चाहिए, तब एसएसजी उस खेती को देख लेंगे। और लाइब्रेरी में इंटरनेट की सुविधा हम यूथ लोग देख लेंगे। मैं एनजीओ की तरफ से आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि हमें मेला के साथ साथ वुमेन स्टॉल और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। इससे सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। धन्यवाद। ये तो सही बात है, हमें तो इसे करना ही चाहिए। और जो एसएसजी ने हमें बजट के लिए फंड मांगा है उसे भी देना चाहिए, ताकि औरतें शहरों में जाकर स्टॉल और मेला में अपने सामान को बेच सके। ये बात हमारे माँ जी के ऊपर भी लागू होता है। माँ जी, आप कितने दिनों तक दर बदर भटकती रहेंगे पेंशन के लिए? आप अपना खुद का अचार का बिजनेस भी स्टार्ट कर स्टॉल लगा सकते हैं बाजार में और खुद के लिए कुछ कर सकती हैं माँ जी। हाँ, ये बात तो आपने सच कही है, पर मैं अचार बना के भी क्या करूँगी? मेरे गांव में तो कोई अचार खरीदता ही नहीं और यहाँ तो बहुत लोग अचार भी खरीदते हैं, तो मैं क्या करूँ? पर भी आपने कहा है तो मैं ट्राई करूँगी। इस पे मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। जैसे हमारे गांव में काफ़ी औरतें काफ़ी चीज़ों में अच्छी है। माँ जी अचार बनाने में अच्छी है, कई लड़कियाँ कपड़े सिलने में अच्छी है और कई कामों में काफ़ी लड़कियाँ अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हमें इस बार तो मुझे नहीं लगता बजट इतना बचेगा, लेकिन इस पे हमें सोचना चाहिए कि अगली बार हम शहर में एक दुकान लगाएं ताकि ये सामान बेच सके। क्योंकि हमारे गांव में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे मिल ही जाती है। जैसे माँ जी अचार बनाएंगी तो वो अचार कौन कौन नहीं जानता है बनाने के लिए। हर एक घर की औरतें वो अचार बनाती है, क्योंकि हमारे गाँव में एकता है। कपड़ा सिलना ये जानती है तो इसका मतलब नहीं है कि बस ये घर वाली जाने, वो दूसरे घर वाले भी जान सकते हैं। तो मेरा तो सुझाव ये है कि अगर हम शहर में दुकान लगाते हैं तो वहाँ पे कोई हमारा सामान खरीद सकेगा। क्योंकि माँ जी गाँव में, माँ जी की दुविधा समझिए, क्योंकि वो तो गांव में अचार बेचने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसका अचार खरीदता नहीं है, क्योंकि सब आता है सबको बनाने के लिए, तो क्यों आदमी अपने पैसे वेस्ट करे। तो अगर वही अचार वो माँ जी शहर में जाके बेचेगी तो वहाँ पे ऐसा अचार नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि हमारे यहाँ का अचार तो इतना लाजवाब होता है कि आदमी खाने से ज़्यादा तो अचार खा जाता है। तो मुझे तो लगता है कि हमें दुकान तो एक लगानी चाहिए शहर में, ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर में बैठे बैठे औरतें काम करती है, चूल्हा फूकती है, बस उतना ही तक रह जाती है, उतना नहीं रहना है। हमारी औरतों को आगे बढ़ना है। माँ जी अचार बना के भी पैसे कमा सकती है, कोई घर में चूल्हा फूक रहा है वो कपड़े सिल के भी पैसे कमा सकते हैं।
क्यों हम हमेशा औरतों को पीछे रखें? औरतें भी तो मर्दों के जैसे काम कर सकती है कि नहीं? तो इसलिए हमें इस पे विचार करना चाहिए ताकि हमारी औरतें घर में भी कुछ कर सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद। ये बात तो आपने बहुत सही कही है। हर वो औरत को अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कब तक गांव की औरतें उन मर्दों के नीचे रहते रहेंगे? अपने लिए कुछ कीजिए, अपने आवाज़ उठाइए और अपने लिए कुछ कीजिए। जब तक पूरा मर्द समाज औरतों को घर से बाहर निकालने नहीं देगा तब तक ये काम कभी मुमकिन नहीं होगा। हर वो औरत, हर वो बेटी पढ़ लिख कर बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है और अपने लिए कुछ करना चाहती है। तो मैं सभी सभा के मेंबर्स और गांव वालों से ये निवेदन करता हूं कि जो घर में बेटियां हैं उन्हें स्कूल जाने दें और जो औरतें घर में काम करती हैं उन्हें स्टॉल लगाने दें ताकि वो खुद के लिए कुछ कर सके। धन्यवाद। क्या आप किसी को कुछ कहना है? अगर आप किसी को भी कुछ नहीं कहना है तो हम आज की ये सभा यही खत्म करते हैं। सभी सदस्यों का आवाज़ सुनकर ग्राम सभा ने फाइनल रेजोल्यूशन कर लिया है। 1. स्टार्ट लाइब्रेरी विद इंटरनेट कैफ कॉर्नर। 2. ऑर्गेनाइज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैंप। 3. लेवल ग्राउंड एंड प्रोवाइड स्पोर्ट्स किट। 4. रिपेयर पॉन्ड प्लस प्लांटेशन। 5. ऑर्गेनाइज पेंशन कैंप। 6. सेट अप किचन गार्डन। 7. होल्ड मेला विद SHG एंड अवेयरनेस ड्राइव। 8. इम्प्रूव स्कूल attendance and girl education. सभा के बहुमति को नजर रखते हुए सभी प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रिय साथियों, आज की ये सभा अत्यंत सार्थक रही है। युवाएं हमारे देश की रीढ़ है। यदि हम उन्हें शिक्षा, सशक्तिकरण और अवसर देंगे तो हमारे गांव और देश निश्चित ही प्रगति करेंगे। मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। With this, we end our Model Youth Gram Sabha. Now, I would like to request our Honorable Chief Guest, Mr. Azad Mikuji, GPC Marcelo, to connect with our students by an influencing speech of his. Please. को नमस्कार। बच्चा लोग जैसे अभी क्वेश्चन पूछा है, बच्चा लोग अपना आप में क्वेश्चन पूछ के वो जो अपना वो मांगे पूरा रखा हुआ है वो सुन के हम भी बहुत खुशी लगा है। वही कि हम पहले पंचायत चेयरमैन हम 2 साल किया था। हम लोग का बस्ती में ग्राम सभा जो है 5-6 ठू बैठता है। 5-6 ठू बैठ के हम लोग बजट बनाते हैं। बजट बना के हम लोग बेच देता है। बेच के जो फंडिंग आएगा तो हम लोग काम कर लेता है। ये चीज़ होता है हम लोग का। सारा लोगों को आइडिया हो गया होगा कि गांव में ग्राम सभा कैसा होता है और इसी तरह से ही होता है ग्राम सभा में ना। और हम हमेशा ये बोलता है कि हमारा जो यूथ है ये बोलता है कि हमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि ऐसे एजुकेटेड आपको यूथ में पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स वहाँ में बाल सभा भी होता है। वहाँ बाल सभा में इसी तरह से बस्ती का इशू को उठाया जाता है, गांव का इशू को उठाया जाता है कि गांव में क्या क्या इशू है, कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। वो बाल सभा का जो रेजुलेशन है फिर आके वो आपका जो पंचायत प्रेसिडेंट वहाँ में केरला में पंचायत प्रेसिडेंट बोलता है वहाँ पे आता है। तो वो आपको यहाँ पे जितना बाल सभा में जो मीटिंग हुआ है, जो इशू निकल के आया, जो लास्ट में फाइनल जो रेजुलेशन निकल के आया, वो हमारा जो बाल सभा का जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, पंचायत बाल सभा का जो प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन होता है, वो फिर ग्राम सभा जनरल ग्राम सभा में लेके आता है। तो हम लोग यहाँ अरुणाचल में भी इसको शुरू करने का बात चल रहा था, बट अभी इलेक्शन है तो इसे रोका गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में इसी तरह बाल सभा हो तो यहीं जेएनबी का बच्चा जो बैठा हुआ है जो यहाँ से सीख के आएगा वो अपने गांव में जाके बाल सभा को अटेंड करके वो थोड़ा अपने गांव को एक अच्छा डायरेक्शन देगा। तो इसी बात के साथ मैं अपने बातों को विराम रखता हूँ। ये बहुत सुंदर अच्छा प्रोग्राम किया है और ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर जो सर है हमारा, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां प्लीज। इसी के साथ मेरा बात को यहीं विराम। थैंक यू वेरी मच।